the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the
one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 सरकार 140 रन बनाने के लिए 19 ओवर का खेल बाकी है। ये मैच औपचारिक है इस वक्त दोनों टीम्स के लिए, कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि वैसे भी जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम वर्तमान श्रृंखला से बाहर हो चुकी है। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर जीतेंगे तो 2 अंक जाएंगे जेवर गैलरी के खाते में। दूसरे नंबर पर रहेंगी साइराज वॉरियर्स की टीम, और अगर साइराज वॉरियर्स की टीम जीतती है तो वो आएगी पहले नंबर पर पॉइंट्स टेबल में वो, और दूसरे नंबर पर आएगी अर्जुनवीर हुबली टाइगर्स की टीम। तो उतना ही बदल होगा जितना मैंने आपको बताया। ज़्यादा कोई असर नहीं है पॉइंट्स टेबल पर। पहले 4 में कौन है ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। जेवर गैलरी की टीम को अपना वजूद हासिल करना होगा क्योंकि पिछले साल की उपविजेता टीम है जेवर गैलरी। करारा ड्राइव, लेकिन हाँ, सीधे कुम्हार की तरफ गेंद को खेल रहे हैं उस कवच के इलाके में। सुधनवा कुलकर्णी का टाइमिंग बड़ा अच्छा था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, और गेंद फील्ड होकर वापस आ रही है राहुल वाजंत्री के पास। तो मैं कह रहा था कि जेवर गैलरी डायमंड्स पिछले साल के उपविजेता टीम है, और आज कहीं ना कहीं जाकर वो निचले क्रम पर चल रही है पॉइंट्स टेबल में। अच्छी गेंद नीचे रही, हल्के से इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला। आनंद कुमार बड़े चौकन्ने हैं, बहुत सफाई के साथ गेंद को रोका उन्होंने, और 1 रन का इजाफा होने के बाद अब दोहरे अंक में प्रवेश कर रही है साइराज वॉरियर्स की टीम। 10 रन बिना कोई विकेट खोकर 9 रन बनाकर सुधनवा खेल रहे हैं। 1 छक्का उनके खाते में शामिल, और 1 रन बनाकर सुजय सातेरी खेल रहे हैं। अब सामना करेंगे राहुल वाजंत्री का। तो अभी भी एक स्लिप तैनात है, स्क्वायर थर्ड मैन है, पॉइंट है, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के इलाके में फील्डर। राहुल की गेंद अच्छी सीध में डाल रहे थे, थोड़ी सी गुडलेन पर टप्पा खिलाया, थोड़ी सी उछाल लेकर गेंद आई, सीध में भी आई गेंद, और बैकफुट पर जाकर सुरक्षा कवच बनाकर उस गेंद को सुजय सातेरी ने कवच के इलाके में गेंद को खेलकर कोई रन नहीं बनाया। गेंद वापस लौट रही है राहुल वाजंत्री के पास। ऑन साइड पर आपको 3 फील्डर नजर आएंगे। एक है शॉर्ट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर, एक है डीप मिड विकेट बाउंड्री, और एक मिड ऑन के इलाके में खिलाड़ी। तो 6-3 की फील्डिंग की रचना। आगे निकले, इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद, सिर्फ औपचारिक दौड़ लगा रहे हैं नागेंद्र पाटिल उस गेंद को वापस लौटाने के लिए। 4 रन बनते हुए थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा दे रहे थे गेंद को, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद को डाल रहे थे राहुल वाजंत्री, और जैसे देखा कि गेंद स्लॉट में आ रही है, 2 कदम आगे बढ़ाकर उस गेंद को हाफ वॉली बनाकर खेला, और 30 गज दायरे के अंदर ही सभी खिलाड़ी खड़े हैं उस कवर, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, मिड ऑफ के इलाके में। तो जब 30 गज दायरा गेंद पार करेगी
तो बहुत जल्दी बाउंड्री के बाहर जाएगी, क्योंकि बड़ा तेज आउटफील्ड है जिमखाना का। उठा दिया गेंद को, मिड ऑन के ऊपर से गेंद, कैच को लेने में कामयाब मिड विकेट के खिलाड़ी, बहुत शानदार कैच लिया। और ये सुजय सातेरी का अब विकेट मिलता हुआ है जेवर गैलरी की टीम को। बहुत अच्छा जज किया था फील्डर ने, मिड विकेट से वो भाग कर गए, थोड़े हवाई स्ट्रोक खेल रहे थे, ऊंचाई अच्छी हासिल की लेकिन लंबाई हासिल नहीं कर पाए सुजय सातेरी, और परिणाम स्वरूप मिड विकेट बाउंड्री से वो भाग कर आए उस वाइडिश मिड ऑन मिड विकेट के इलाके में, और उस कैच को लेने में कामयाब। तो पहला झटका साईराज वॉरियर्स को दे रहे हैं राहुल वाजंत्री। 5 रन वो बना रहे थे, विनीत पाटिल ने उनका कैच लिया। एक अच्छे फील्डरों में शुमार है विनीत पाटिल, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनको बहुत कम मौके मिले इस टूर्नामेंट में खेलने के, इस श्रृंखला में खेलने के, लेकिन जब भी कभी उनको मौका मिला है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता हुआ सुजय सातेरी के रूप में एक चौकी की मदद से वो 5 गेंदों का सामना कर रहे थे, 5 ही रन बना रहे थे, और अब रन संख्या बनी है 14, 1 विकेट के नुकसान पर। सुधनवा खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, 6 गेंदों का सामना अब तक उन्होंने किया है, और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर आए हैं नरेंद्र मांगुरे। 148 का लक्ष्य का जवाब दे रही है साईराज वॉरियर्स की टीम। राहुल वाजंत्री इस वक्त आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की सुधनवा कुलकर्णी के लिए 9 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, स्लिप के खिलाड़ी को हटाकर अब थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में फील्डर। वो बहुत ही मुश्किल था विकेट कीपर के लिए उस गेंद को रोकना, बहुत लेग स्टंप के बाहर गेंद को डाल रहे थे, इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क तो हुआ नहीं। वाइड का इशारा होता हुआ 1 रन दौड़कर भी पूरा किया। ये 2 रन वाइड के बनते हुए साईराज वॉरियर्स के लिए रन संख्या बनी है अब 16, 1 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद ज़्यादा डालनी होगी, बड़े वाइड बड़े खतरनाक होते हैं। अब 2 रन तो वैसे भी बिना किसी गेंद के आए हैं, और अगर इस गेंद पर जो अतिरिक्त डाल रहे हैं इस पर रन बनेंगे वो तो बोनस होंगे, एक तोहफे में रन आएंगे साईराज वॉरियर्स की टीम को। तो गेंदबाजों को T20 के फॉर्मेट में बहुत चौकन्ना रहकर गेंदबाजी करनी है, नो बॉल और वाइड बॉल नहीं करनी चाहिए। ओ बाउंसर थी और बहुत अच्छी बाउंसर, झुककर उस गेंद को छोड़ दिया था नरेंद्र मांगुरे ने, और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई है। ये ओवर समाप्त हो रहा है राहुल वाजंत्री का। 16 रन कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7 रन देकर 1 विकेट राहुल वाजंत्री के खाते में जा रहा है, और 8 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 16 रन साईराज वॉरियर्स की टीम बना रही है 1 विकेट खोने के बाद। अभी सुजय सातेरी आउट हुए, कॉट विनीत पाटिल, बोल्ड राहुल वाजंत्री 5। नरेंद्र मांगुरे अभी मैदान पर आए हैं, खाता खोलने का उनको कोई मौका नहीं मिला। वो आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन क्या ज़बरदस्त बाउंसर गेंद डाली राहुल वाजंत्री ने। वैसे भी बाउंसर कुछ कारगर तो सिद्ध नहीं होती, लेकिन बल्लेबाजों का लक्ष्य विचलित करने में उसका उपयोग कभी कभी किया जाता है। लेकिन एक हिदायत ज़रूर मिली अंपायर की तरफ से, उठा दिया गेंद को, हवा में जरूर है लेकिन गेंद गई साइड स्क्रीन के ऊपर, छक्का बनता हुआ। क्या आसान छक्का जड़ा रहे हैं सुधनवा कुलकर्णी, कोई परेशानी नहीं है, और बहुत आला दर्जे का टाइमिंग बनाया उन्होंने, और सीधी गेंद उन्होंने पंच के अंदाज में उठाकर खेला। ज़्यादा कोई ताकत लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, सिर्फ कमाल की टाइमिंग और स्ट्रोक के पीछे जो पंच था वो काम कर गया, छक्का बनता हुआ। 15 पर सुधनवा खेल रहे हैं, रन संख्या बनी है 22, 22।
कुमार की है गेंद, इस बार स्वीप किया उस गेंद को। फाइन लेग के इलाके में थोड़ी सी मिस फील्डिंग कर रहे हैं फील्डर गणेश जामले, लगता है उस इलाके में खड़े हैं। जी हाँ बिल्कुल, गणेश जामले ने मिस फील्डिंग की और एक रन सुधलमा के लिए बनता हुआ है। 17 पर जा पहुंचे 16 पर जा पहुंचे सुधलमा। पारी की रन संख्या 23। इस गेंद को आने दिया बल्ले पर, उसके बाद कलायों को मोड़कर उस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में खेला। ताहिर सराफ शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हैं, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया लेकिन मांगुरे ने अपना खाता खोला। इस एक रन के साथ रन संख्या साईराज वॉरियर्स 24 एक विकेट के नुकसान पर 24 for 1। 148 रनों की चुनौती पार करनी है साईराज वॉरियर्स की टीम को। ओ ये तो बहुत नीचे रही गेंद, जगह तो पहले ही बनाकर खेलने के मन बना रहे थे सुधनवा कुलकर ने, लेकिन चकमा दिया है गेंद ने, कोई रन नहीं बना। विकेट कीपर बड़े नजदीक खड़े हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया और वापस गेंद कुंभार के पास। आनंद कुमार के गेंद बैक फुट पर गए, कट शॉट खेला लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई नजर आई। रन लेने के लिए निकल तो पड़े जरूर थे, लेकिन सामने वाले छोर से नरेंद्र मांगुरे ने खतरे को देखा, क्योंकि प्रशांत मुतकेकर वो मिस फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मांगुरे जानते हैं कि 30 गज दायरे के अंदर मिस फील्डिंग अगर हुई, रन लेने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं, इसलिए मना किया रन लेने से। सही सोच। स्वीप किया इस गेंद को, लेकिन स्क्वायर लेग पर डाइव लगाकर गेंद को रोक रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग चेतन पांगेरे की, और आज बल्लेबाजी में अच्छा दमखम दिखाया है चेतन पांगेरे ने। उसके बाद अमय भातकांडे बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं जाकर 147 तो बना रही थी जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम, लेकिन अब रोकने की आवश्यकता भी है उनको इस अंतिम मुकाबले में, जो कि लीग का ये अंतिम मैच चलता हुआ KR शेट्टी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट में। फिलहाल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर साईराज वॉरियर्स 8 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बना रही है, और ये काफ़ी भी है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 7.50 के रफ्तार से, या फिर आप उतनी ही हिसाब से उनको रन बनाने हैं, लेकिन फिलहाल 8 के औसत से रन बनते हुए साईराज वॉरियर्स के लिए। राहुल वाजंत्री फिर एक बार मोर्चे पर लग रहे हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। तो एक छोर से माजिद मकानदार फिरकी का आक्रमण कर रहे हैं, और एक तरफ से वो मध्यम गति के तेज आक्रमण करवा रहे हैं राहुल वाजंत्री की तरफ से। इस भारी यॉर्कर लेन की गेंद डाली, अच्छा ड्राइव तो जरूर खेला था, लेकिन वो जो चक्रव्यूह बना के रखा हुआ है उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। आप देखेंगे थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये पूरा जो चक्रव्यूह बनाया है और नरेंद्र मांगुरे के लिए, उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। डॉट गेंद होने के बाद गेंद वापस लौट रही है राहुल वाजंत्री के पास। इस बार बाहरी किनारा लिया, चक्रव्यूह को भेदा है। इस बार फाइन गई है गेंद थर्ड मैन के इलाके में, 4 रन। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जानबूझकर बल्ले का मुंह खोला, उस यॉर्कर लेन की गेंद को डाल रहे थे, थोड़ी ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर करा रहे थे गेंद को, और जैसे देखा कि नरेंद्र मांगुरे ने कि ये एक ही तरीका है जहाँ पर वो चौका बना सकते हैं, तो उन्होंने बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोल कर उस गेंद को फाइन खेला थर्ड मैन के इलाके में। आनंद कुमार तो ज़रूर खड़े हैं उस थर्ड मैन के इलाके में, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, ऐसे स्थिति में कुछ कर नहीं सकते। बहुत तेज़ गेंद निकल गई। चौका बनने के बाद अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 28 for 1। ओह, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिलता हुआ। पूरी तरीके से टाइव लगाई है, अपनी शैली के विपरीत जाकर वाइड का इशारा तो हुआ। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिले। एक वाइड का रन साईराज वॉरियर्स के खाते में जा रहा है। रन संख्या बनी है 29। 1 विकेट सुजय सातेरी का खो रही है।
ड्राइव करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हवा से ज़रूर मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मांगुरे। आगे निकल कर आए ज़रूर, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही, थोड़ी गुडलैंड पर भी डाल रहे थे, थोड़ी सी लंबाई कम की बाद में जाकर। बड़े बुद्धिमान गेंदबाज हैं, क्योंकि एक ही क्लब से खेलने वाले ये तमाम खिलाड़ी हैं, चेतन पांगिरे, नरेंद्र मांगुरे, राहुल वाजंत्री, एक ही क्लब के खिलाड़ी हैं, तो जानते हैं क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। उस हिसाब से वो अपने आप को साँचे में ढालकर गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे। फुल टॉस थी, करारा ड्राइव खेला माजिद, बहुत खराब फील्डिंग कर रहे हैं, चौका बनता हुआ। करारा ड्राइव था, फुल टॉस गेंद आई और पूरी ताकत के साथ उस गेंद को मिड ऑफ के इलाके में ड्राइव किया, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियों को लग कर गेंद गई है। माजिद मकानदार अभी भी हाथ झटक रहे हैं। इस तेज तर्रार शॉट को तो रोकना चाहिए था। माजिद अच्छे फील्डर हैं ज़रूर, लेकिन इस तेज तर्रार शॉट को वो रोक नहीं पाए। एक चौका बनता हुआ नरेंद्र मांगुरे के लिए। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 33 for 1। माजिद अभी भी कुछ परेशानी में हैं, कुछ उंगलियां छटक रहे हैं अभी भी। शॉर्ट गेंद डाली, एज लेकर गेंद हवा में, ताहिर सराफ ने कैच को छोड़ा है। यह आसान था कैच उनके लिए, वो नीचे भी आ गए थे गेंद के, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लेंगे बड़े आराम के साथ, लेकिन इस कैच को ताहिर सराफ थर्ड मैन के इलाके में छोड़ रहे हैं। टॉपेज लगकर गेंद हवा में गई, काफ़ी देर लटक गई गेंद हवा में, और पूरा समय तो मिला था ज़रूर इस गेंद के नीचे आने का ताहिर सराफ को, वो आ भी गए ज़रूर, लेकिन ऐन वक्त पर उनके गिरफ्त से गेंद छूटी और नरेंद्र मांगुरे जैसे बल्लेबाज को जीवनदान देना मतलब खतरे से खाली तो नहीं होगा। खतरे की घंटी वो कभी भी बजा सकते हैं प्रतिस्पर्धी टीम के लिए, और राहुल वाजंत्री निश्चित तौर पर थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि एक बड़ी मछली तकरीबन उन्होंने अपने जाल में फंसाई ज़रूर थी, लेकिन कैच नहीं ले पाए ताहिर सराफ। तो 34 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। मांगुरे खेल रहे हैं 10 रन बनाकर 2 चौकों की मदद से, सुधर्मा 16 रन बनाकर। फुल टॉस थी गेंद, लेकिन फायदा ठीक तरीके से उठा तो नहीं पा रहे हैं। मिड ऑन के इलाके में गेंद को खेल रहे हैं सुधनवा, और एक ही रन बनता हुआ ये ओवर समाप्त हो रहा है। ये थोड़ा सा मलाल तो रहेगा राहुल वाजंत्री के मन में कि एक विकेट और उनके झोले में जाते जाते रह गया, लेकिन अब 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद साईराज वॉरियर्स ने 35 रन बनाए हैं 35, 1 विकेट के नुकसान पर, 35 for 1। आज विकेट कीपिंग की भूमिका में है लतीफ़ सनदी। आमतौर पर हम चेतन पांगिरे को देखते हैं, लेकिन आज लतीफ़ संदी है विकेट कीपर। एक गेंद बहुत बढ़िया रोकी थी उन्होंने, वो वाइड थी गेंद राहुल वाजंत्री की। तो अब फिरकी का आक्रमण हमें देखने को मिलता हुआ। जी नहीं, प्रशांत मुझके कर आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। वैसे अगर देखेंगे तो वो मीडियम पेसर गेंदबाज हैं, लेकिन रनअप बहुत छोटा है उनका, बहुत बड़ा रनअप नहीं है। तो दोनों किस्म की गेंदबाजी वो कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो थोड़ी तेज़ गेंदें भी कराते हैं, कभी कभी स्लो पर वन का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छी विविधता है उनकी गेंदबाजी में। अच्छी गेंद डाल रहे हैं, गुडलैंड गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही। सुधन कुलकर्णी थोड़े से असमंजस की स्थिति में खेल रहे थे उस गेंद को, थोड़ा सा विचलित होकर खेल रहे थे, थोड़ा सरक कर खेल रहे थे, गेंद के लाइन में नहीं आ रहे थे, और चकमा दिया गेंद ने। लतीफ़ सनदी ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। आगे बढ़े, सीधा ड्राइव खेला, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात,
उस गेंद को रोकने के बाद रन की संभावना खत्म। हमें हथकांडे खड़े हैं उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, रन की गुंजाइश नहीं है और गेंद वापस प्रशांत मुतकेकर के पास। 35 रन साईराज वॉरियर्स की टीम अब तक जोड़ रही है 1 विकेट खोने के बाद। थोड़ी सी शॉट इनसाइड एज लिया है गेंद ने। गणेश जामले फाइन लेग पर हैं, उन्होंने गेंद को रोका। खेलना चाहते थे उस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में, लेकिन बल्ले का अंदरूनी से किनारे लेकर गेंद, आप चाहिए तो फ्रेंच कट, चाइनीज़ कट, लेमन कट, जो चाहिए कहिए, वो स्ट्रोक बना बाद में जाकर। वैसे तो वो खेलना कुछ और स्ट्रोक चाह रहे थे, लेकिन गेंद कहीं और लगने के बाद अचानक स्ट्रोक की दिशा चेंज हुई, दिशा बदल गई। फाइन लेग पर गेंद फील्ड हुई, 1 रन बनता हुआ। रन संख्या बनी है अब 36, 1 विकेट खोने के बाद साईराज वॉरियर्स। इस गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला है। मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है 4 रन। कोई फील्डर नहीं है उस मिड विकेट के इलाके में। बड़े खूबसूरती के साथ उस गेंद को लपेट कर खेला है नरेंद्र मांगुरे ने। ये शॉट बड़ा अच्छा खेलते भी हैं वो, काफ़ी महारत हासिल भी की है उन्होंने। और काफ़ी बार हम T20 के फॉर्मेट में, चाहे वो यहाँ पर हो या IPL में हो, स्लॉग स्वीप का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग देखने को मिलता है हमें, और उसी का अनुकरण कभी कभी हमको जिमखाना का मैदान पर भी देखने को मिलता है। प्रशांत की गेंद, फिर एक बार स्लॉग स्वीप करने के चक्कर में LBW, ये घातक साबित हुआ। एक खेला जरूर था लेकिन 1 पर बीट हुए और वही घातक साबित हुआ नरेंद्र मांगुरे के लिए। स्लॉग स्वीप एक बार और करने की कोशिश, घुटनों के बल जाकर मिड विकेट के इलाके में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधी आई और पैड पर लगी, और वो भी पिछले पैर पर लगी। संजय रोकड़े जो कि अंपायर हैं, उनकी उंगली ऊपर दाद मांगने के बाद तो प्रशांत मुतकेकर का ये जो पहला ओवर है इसमें विकेट मिलता हुआ, माजिद मकानदार की सही सोच कि छठ से उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन लाया। परिवर्तन लाने के बाद निराश तो नहीं किया है प्रशांत मुतकेकर ने। नरेंद्र मांगुरे जैसे तगड़े बल्लेबाज का विकेट उनके खाते में जा रहा है। ताहिर सराफ ने उनका कैच छोड़ा था, लेकिन कोई ज़्यादा महंगा साबित नहीं हुआ। एक ही चौका बाद में लगा उनके बल्ले से और वापस लौटे हैं पवेलियन में। मांगुरे आउट होने से पहले 14 रन बना रहे थे। 9 गेंदों का सामना किया था उन्होंने और 3 चौके उनके खाते में शामिल थे। तो कई बार हम देखते हैं कि चौका छक्का लगने के बाद बैट्समैन अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, उनके रगों में खून तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, एक और कुछ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवाते हैं। कई बार हमने देखा, ऐसे ही हुआ अब नरेंद्र मांगुरे के साथ। एक चौका लगने के बाद एक और स्वीप करने की कोशिश में वो पग बाधा होकर वापस लौटे पवेलियन में। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं दीपक राक्षे। रन संख्या बनी है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर पारी का चलता हुआ। प्रशांत की गेंद, इस गेंद को हल्के से पुश भरते हुए खेला है उस मिड ऑन के इलाके में, और जब तक कि वहां पर गेंद को फील्ड करते दीपक राक्षे ने 1 रन दौड़कर अपना खाता खोला और 5वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। साईराज वॉरियर्स 41 रन बना रही हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सुधरमा खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और 1 रन बनाकर खेल रहे हैं दीपक राक्षे। आउट होने वाले बल्लेबाज सुजय सातेरी, कॉट विनीत पाटिल, बोल्ड राहुल वाजंत्री 5 और नरेंद्र मांगुरे, LBW प्रशांत मुतकेकर 14। ये 2 खिलाड़ी वापस लौटे हैं पवेलियन में। 1 विकेट प्रशांत मुतकेकर को मिला और 1 विकेट राहुल वाजंत्री के खाते में जा रहा है। तो गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कप्तान माजिद मकानदार। थोड़ी देर वो बाहर ज़रूर थे मैदान से, क्योंकि उनको चोट थोड़ी सी लगी थी उंगली को, इसलिए वो 1-5 मिनट बाहर थे, लेकिन अब आए हैं मैदान पर। लेकिन राहुल वाजंत्री पर अभी भी भरोसा जताते हुए गेंद सौंपी है माजिद मकानदार ने, और राहुल वाजंत्री ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं रहा उनका। 18 रन दिए हैं उन्होंने और 1 सफलता उनके खाते में जा रही है। 5 ओवर में 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चलता हुआ।
इसके बाद फील्डिंग की रचना मन के मुताबिक लगा सकते हैं कप्तान माजिद मकानदार, लेकिन ये ओवर खत्म होने तक दो ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे, वो है थर्डमैन और स्वीपर कवर बाउंड्री। ओ ये गेंद लेग स्टंप के बाहर डाल रहे हैं लतीफ संदी ने, बहुत अच्छी गैदरिंग की है विकेट के पीछे, लेकिन संजय कुलकर्णी वाइड का इशारा कर रहे हैं। ये घाटे का सौदा और सच्चाई के कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगे राहुल वाजंत्री और जेवर गैलवे डायमंड्स को। रन संख्या इस वाइड के जरिए आगे बढ़ रही है, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 42 for 2। दीपक रक्षे 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, अब सामना करेंगे राहुल वाजंत्री का, लेकिन अभी भी कुछ फील्डिंग में बदलाव चाह तो रहे हैं। अब देखिए, अब स्वीपर कवर के खिलाड़ी को अंदर 30 गज दायरे के अंदर बुलाकर मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी रखा गया है। हवा में उठाकर खेला, उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं है। थोड़ी स्लॉट में गेंद डाल रहे थे, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद आ रही थी और बल्ले पर चढ़ाकर उस गेंद को खेला उन्होंने, और जैसे बल्ले पर चढ़ी गेंद उस मिड ऑन के दायरे को पार करना आवश्यक था, उतनी ताकत जरूर लगाई दीपक राक्षे ने और चौका हासिल किया। 5 पर जा पहुंचे दीपक राक्षे और रन संख्या बनी है 46। ओह, थोड़ी सी हवा में गेंद है लेकिन कैच नहीं ले पाएंगे, लेकिन रन आउट करने का भी मौका गंवा रहे हैं। यह मौका बन सकता था, कैच तो थोड़ा मुश्किल था ज़रूर, क्योंकि बॉलर के पीछे की तरफ गेंद हवा में गई। दीपक राक्षे के बल्ले से ये कोई विश्वसनीय स्ट्रोक तो नहीं था, थोड़ा सा ऊपरी हिस्से से गेंद लगकर हवा में गई बॉलर के पीछे, लेकिन रन आउट करने का मौका ज़रूर बन सकता था, लेकिन हमें भटकांडे का निशाना सटीक नहीं लगा। दीपक राक्षे को बढ़त देकर भेजा गया है, लाइसेंस देकर भेजा है कप्तान ने उनको कि आप है आक्रामक बल्लेबाज, आप बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, आप हमेशा निचले क्रम पर खेलते हैं, आज जाइए और कुछ अच्छा खेल कर आइए, ये कहकर भेजा है बढ़त देकर। इस गेंद को स्टीयर किया, लेकिन पॉइंट के इलाके में गेंद गई है। थोड़े से उतावले थे ज़रूर दीपक राक्षे रन लेने के लिए, लेकिन सुधर्मा कुलकर्णी का कोई इरादा नहीं था रन लेने का, मना किया उन्होंने रन लेने से। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कभी कभी बढ़त जब किसी खिलाड़ी को मिलती हैं तो अच्छा खेल का प्रदर्शन हो भी जाता है खिलाड़ियों की तरफ से। इस गेंद को अपील ज़रूर की जा रही है, लेकिन कोई विश्वसनीय अपील तो था नहीं। मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है और लेग बाय का इशारा संजय कुलकर्णी कर रहे हैं। रन संख्या बनी है 48 48 2 विकेट के नुकसान पर। साईराज वॉरियर्स 148 रनों का पीछा कर रही है, 100 रनों की दरकार है यहाँ से लेकर आगे। इस गेंद को बल्ले पर आने दिया, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, थर्डमैन के इलाके में गई है। तारीख सराफ ने गेंद को फील्ड किया 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन दीपक राक्षे ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 49 49। दो विकेट के नुकसान पर 49 रनों की जरूरत है। इसके बाद 14.1 ओवर का खेल बाकी है। राउंड द विकेट सुधरवा ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को इम्प्रोवाइज किया, पुल किया बाहर की गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन मिड विकेट के इलाके में चौका बना दिया।
कोई खिलाड़ी भी नहीं है उस डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। यह चौका अर्धशतक पूरा कर रहा है साइराज वॉरियर्स की टीम का। रन संख्या बनी है 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने के बाद 53, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर स्कोर इज 53 for 2 साइराज वॉरियर्स। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं तुर्क के इक्के मोहम्मद ताहिर सराफ। इस बीच पहली गेंद ताहिर सराफ के हल्के से कलाई के सहारे मोड़ दिया मिड विकेट के इलाके में। गेंद डीप में फील्डर हैं, 1 रन बनेगा दीपक राक्षे के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ताहिर की ये गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेला, रन लेने के लिए निकल पड़े सुधनवा और 1 रन पूरा किया। थोड़ी हिचकिचाहट नजर तो आ रही थी जरूर, लेकिन सामने वाले छोर से दीपक राक्षे हामी भरी उन्होंने और 1 रन पूरा किया। रन संख्या बनी है 55, 55। 2 विकेट खो रही है इस दौरान साइराज वॉरियर्स। ताहिर की ये गेंद थोड़ी सी उछाल, टर्न ज़्यादा मिली और वाइड का इशारा होता हुआ। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। ऐसे समय पर आपको वाइड नो बॉल पर बड़ी रोक लगानी चाहिए। रन संख्या बनी है 56। बैकफुट पर गए, इस गेंद को पुल किया मिड विकेट के इलाके में, 4 रन। कोई खिलाड़ी नहीं है, स्क्वायर लेग और उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में बहुत बड़ा फासला है। उस फासले में गेंद को खेल रहे हैं दीपक राक्षे। और दीपक राक्षे को जिस काम के लिए भेजा गया है वो तो काम वो बखूबी निभा रहे हैं। और रन संख्या बनी तो है 60 और दीपक राक्षे 12 पर जा पहुंचे। 6 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। बल्ले का सुधनवा 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद, लेकिन इस गेंद को कवच के इलाके में खेला, रन लेने के लिए निकल पड़े और 1 रन पूरा किया। नागेंद्र पाटिल हैं उस इलाके में, लेकिन अच्छी तालमेल और समझबूझ के साथ 1 रन पूरा किया। रन संख्या बनी है 62, 2 विकेट के नुकसान पर। ओ क्या बढ़िया गेंद डाल रहे हैं और दीपक राक्षे की पारी समाप्त करने में ताहिर सराफ कामयाब हुए हैं। एक फ्लाइटेड गेंद डाली उन्होंने और पूरे डिफेंस को तगड़ा बनाकर खेलने के बजाय वो थोड़ा सा कमजोर बनाकर खेल रहे थे। बैट और पैड के बीच में जो थोड़ा सा फासला था, उस फासले से गेंद निकल गई और दीपक राक्षे बोल्ड हुए। तो जिस मकसद से ताहिर सराफ को लाया गया है वो मकसद में कामयाब तो हुए हैं। माजिद मकानदार, एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी और दीपक राक्षे धीरे धीरे खतरनाक साबित तो हो रहे थे ज़रूर, लेकिन अंततः विकेट मिलता हुआ ताहिर सराफ को। तीसरा विकेट 62 पर खो रही है साइराज वॉरियर्स की टीम। 7 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। 13 रन बना रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया, 2 चौके उनके खाते में शामिल थे दीपक राक्षे के।
लेकिन एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी ज़ेवर गैलरी डायमंड्स की टीम को। वो ब्रेक थ्रू तो अब मोहम्मद ताहिर सराफ दिलवाने में कामयाब हुए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित पाटिल मैदान पर। अब देखिए सूरत हाल ये है इस मैच का कि अब 78 गेंदों का खेल बाकी है और 78 गेंदों में 86 रनों की ज़रूरत है। 78 बॉल्स आर रिमेनिंग एंड 86 रिक्वायर्ड साइराज वॉरियर्स को। तो अगर ये मैच ज़ेवर गैलरी डायमंड्स की टीम को जीतना है, कुछ मुंह मीठा करना है जाते जाते के आर शेट्टी T20 टूर्नामेंट में, तो उनको अब 7 विकेट लेने हैं, रन भी बचाने हैं, अच्छी फील्डिंग करनी है, अच्छी गेंदबाजी करनी है, अच्छी बॉलिंग करनी है उनको, तभी जाकर यह संभव है। अभी भी ऐसा नहीं है कि यह मैच में ज़ेवर गैलरी डायमंड्स की टीम वापस नहीं आ सकती, ऐसे तो हालात नहीं हैं। सिर्फ अब प्रतिभा से कहीं ऊंचा प्रदर्शन करना होगा इस अंतिम लीग मुकाबले में ज़ेवर गैलरी डायमंड्स की टीम को। वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा साइराज वॉरियर्स के टीम के लिए। वो जीतेंगे तो सिर्फ 1 नंबर पर जाएंगे, हारेंगे तो 2 नंबर पर है, वैसे ही वो 2 नंबर पर रहेंगे, तो उनका स्थान तो है वो बरकरार है। फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा ज़ेवर गैलरी डायमंड्स की टीम को। ओह, ये बहुत ख़राब गेंद, कितनी दूर गेंद डाल रहे हैं। और देखिए जले पर नमक छिड़क कर गेंद गई है 4 रन के लिए वाइड, और वाइड के चलते चौका। ये 5 फोकट के रन साइराज वॉरियर्स को मिलते हुए, इस बात का तो स्वागत वो ज़रूर करेंगे। बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी जद्दोजहद के 5 रन बने हैं साइराज वॉरियर्स के लिए। 66 रन स्कोर बनता हुआ 67। नए बल्लेबाज रोहित पाटिल आए हैं मैदान पर। सुदनबा सामना करेंगे। इस गेंद को खूबसूरती के साथ उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में खेला, अच्छी फील्डिंग अमय भातकांडे डीप में कर रहे हैं। एक ही रन बनता हुआ सुदनबा के लिए। सुदनबा जा पहुंचे 25 पर। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 68 for 3 साइराज वॉरियर्स। प्रशांत मुतकेकर को 1 ओवर की गेंदबाजी दूर वाले छोर से करवाने के बाद माजिद मकानदार ने उनको पेविलियन छोर से गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगा चुके हैं। रोहित पाटिल उनके सामने खड़े हैं। अभी तक रोहित पाटिल ने खाता नहीं खोला। युवा खिलाड़ी हैं रोहित पाटिल, काफ़ी अच्छा करियर है उनका आगे। ओ, क्या खराब गेंद डाल रहे हैं इस बार। लतीफ़ सनदी ने अच्छी विकेट कीपिंग की है, पूरे शरीर को झोंका। जिस तरीके से पानी में गोता लगाया जाता है वैसे उन्होंने अपनी बाईं ओर जाकर गोता लगाया, बड़े बड़े ग्लव्स में उस गेंद को रोका उन्होंने। लेकिन एक वाइड का रन तो निश्चित बनता हुआ साइराज वॉरियर्स के खाते में। 69 रन स्कोर बन रहा है 69 for 3। फिर एक बार वही समस्या। प्रशांत मुतकेकर पता नहीं कहाँ लाइन खो कर आए हैं आज, कहाँ भूल कर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छे गेंदबाज ज़रूर हैं प्रशांत मुतकेकर, लेकिन वो हमेशा स्कोरर को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, अंपायर्स को तकलीफ़ देते हैं वाइड के ज़रिए। क्योंकि कभी कभी जो छोटे छोटे खाने हैं स्कोरर के वो कम पड़ जाते हैं जब वो वाइड गेंदें डालना शुरू करते हैं तब। इस बार अच्छी गेंद डाली है। इस बार थोड़ी राहत की सांस तो ज़रूर ली होगी प्रशांत मुतकेकर, कप्तान माजिद मकानदार, तमाम खिलाड़ियों ने कि भाई चलो 2-3 वाइड गेंदें कराने के बाद कम से कम एक गेंद तो उन्होंने अच्छी डाली। अच्छे गेंदबाज हैं ज़रूर, सिर्फ लय मिलनी चाहिए उनको। और एक बार प्रशांत मुतकेकर को लय मिली तो उनसे बढ़िया गेंदबाज भी आपको नज़र नहीं आएगा इस पूरे टूर्नामेंट में। इस गेंद को कलाई के सारे हल्के से मोड़ दिया है। फाइन स्क्वायर लेग के इलाके की तरफ गेंद गई है और फाइन लेग से जब तक कि फील्डर जाकर गेंद को उठाते हैं, 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 71 3 विकेट के नुकसान पर साइराज वॉरियर्स। प्रशांत ओहो, ये बहुत ही खराब कमजोर गेंद थी। जरूर खेले इसीलिए रन बना,
छोड़ते तो निश्चित तौर पर ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर निकल जाती, लेकिन बल्लेबाज सुधर्मा कुलकर्णी ने खेला उस गेंद को, बहुत बाहर की तरफ गेंद को डाल रहे थे, लेकिन एक रन सुधर्मा के लिए बनता हुआ। रन संख्या बनी है 72, 3 विकेट के नुकसान पर, 72 for 3। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, स्वीपर कवर के इलाके में गेंद, स्वीपर कवर पर गेंद जब तक कि फील्ड करते रोहित पाटिल ने अपना खाता खोला और पारी की रन संख्या बनी है 73 रन 73। 7.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। स्थिति बड़ी अच्छी है, भले ही 3 विकेट खोए हों साइराज बॉलर्स की टीम ने, लेकिन अब देखिए 73 गेंदों का खेल बाकी है, 75 रन चाहिए और यहां से लेकर आगे। इस गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर करते हुए खेला थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्डर जरूर है लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे सुधर्मा कुलकर्णी को। तो ये 8वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। 8 ओवर के बाद 74 रन, यानी कि आधा सफर, रनों के हिसाब से आधा सफर तय हुआ है। वैसे चाहिए उनको 148, अब बने हैं 74, ओवर बचे हैं 12, यानी कि 72 गेंदों का खेल बाकी है और 72 गेंदों में रन चाहिए 74, 74। तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो है 6.17 का, बहुत बड़ा तो नहीं है। इस मैदान पर इस विकेट पर रन बनते हैं, बड़ा अनुकूल विकेट है, जन्नत मानी जाती है ये विकेट बल्लेबाजों के लिए। लेकिन 1-2-3 दिन ऐसा अनुभव हमको मिला कि वो गेंदबाजों को मदद करता हुआ हमें नजर आया जब बारिश हुई तब। लेकिन आज फिर से रन तो बन रहे हैं ज़रूर। आज सुबह भी 15 ओवर का मैच ज़रूर था लेकिन 145 रन बने और आज दूसरे इनिंग्स में भले ये 20 ओवर का मैच हो लेकिन 147 रन बने, तो ये ठीक ठाक है मैदान रन बनाने के लिए। फिलहाल ताहिर सराफ दूर वाले छोर से ये जूसी फुल टॉस डाल रहे हैं। अगर मैं भी होता तो चौका लगाता, इतनी जूसी फुल टॉस दे रहे हैं ताहिर सराफ। ये तो लॉलीपॉप गेंद डाल रहे हैं और सुधर्मा जैसे बैट्समैन इस तरीके की गेंदें उनको मिलेंगी तो वो सीमा पार भेजेंगे उस गेंद को। 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक और फ्लाइटेड गेंद, हो ये क्या था, कैच, खतरनाक कैच पकड़ने में कामयाब हुए हैं ताहिर सराफ। ड्राइव किया उस गेंद को लेकिन जबरदस्त डाइव लगाई अपने फॉलो थ्रू में और एक हाथ से इस कैच को अंत में दबोचने में कामयाब हुए। थोड़ी सी गेंद जा भी रही थी उनको छका कर और नीचे भी रह रही थी, लेकिन सही टाइमिंग बनाया उन्होंने और सही टाइमिंग पर डाइव लगाई और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है। ये भी फ्लाइटेड गेंद डाल रहे थे लेकिन इस बार बल्ले पर नहीं डाल रहे थे, वो उस गेंद को हाफ वॉली बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे और हाफ वॉली बनाकर सुधर्मा ने गेंद को ड्राइव जरूर किया लेकिन क्या बेहतरीन कैच पकड़ा ताहिर सराफ ने। अभी भी वो जोश वो दमखम है ताहिर सराफ में। दूसरा विकेट उनके खाते में जा रहा है। रन संख्या 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर साइराज वॉरियर्स। बड़ा विकेट मिलता हुआ सुधर्मा कुलकर्णी धीरे धीरे थोड़े से खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन अब उनका विकेट लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस ले रही है, सुकून की सांस ले रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। 32 पर रन बनाकर सुधर्मा कुलकर्णी कॉट एंड बोल्ड। ताहिर सराफ वापस लौटे हैं पवेलियन में। 25 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 चौके 2 छक्के उनके पारे में शामिल थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच है। आप रिप्ले देख सकते हैं आईटीसी स्पोर्ट्स के माध्यम से। जो भी लोग देर से जुड़े हैं या फिर शाम को अगर आपको वक्त मिला तो ये कैच ज़रूर देखिए आप। बहुत शानदार कैच लिया था अपने फॉलो थ्रू में ताहिर सराफ ने। नए बल्लेबाज शुभम गौंडाडकर। ताहिर की फ्लाइटेड गेंद, ओ बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला, पहली गेंद पर छक्का जड़ा दिया। ताहिर सराफ का स्वागत आते ही कर रहे हैं शुभम गौंडाडकर। फ्लाइटेड गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला बॉलर के सर के ऊपर से, सीधी साइड स्क्रीन को टकराकर गेंद वापस लौटी है मैदान के अंदर।
84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये जो बहुत बढ़िया थोड़ी तेज गेंद डाली, सीध में गेंद आई और शुभम गौंडाडकर को बैकलिफ्ट कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर उस गेंद को खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था ताहिर सराफ ने। और डॉट गेंद अच्छी वापसी छक्का खाने के बाद। इस गेंद को भी संयम के साथ खेला है कबस की दिशा में। खुद ताहिर सराफ ने गेंद को उठाया है जाकर, वहां कोई रन नहीं बनेगा। 84 पर 4। स्थिति तो बड़ी अच्छी है इस वक्त साइराज वॉरियर्स की टीम की। 64 रनों की उनको दरकार है, 66 गेंदों का खेल बाकी। बैकफुट पर गए, नीचे रही गेंद, जगह तो बना रहे थे जरूर शुभम गौंडाडकर, लेकिन गेंद सीधे बल्ले से गई बॉलर की दिशा में। कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है ताहिर सराफ की। और 9 ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स साइराज वॉरियर्स 84। मौजूदा रन रेट है 9.33 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 5.82 का। तो तुलना अगर हम करेंगे इस सत्र की 9 ओवर की बात करें तो ड्राइविंग सीट पर जरूर है साइराज वॉरियर्स की टीम। अच्छी पकड़ बनाई है बल्लेबाजों ने, भले 4 विकेट खोए हो, लेकिन सुधर्मा कुलकर्णी ने अपना योगदान दिया। उसके बाद नरेंद्र मांगुरे अपना योगदान दे रहे थे, दीपक राक्षा अपने योगदान दे रहे थे। अब रोहित पाटिल और शुभम गौंडाडकर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो बचे हैं रन 64 बनाने के लिए, 66 गेंदों का खेल उनका होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जाकर इन युवा खिलाड़ियों के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी अब किस तरीके से निभाते हैं ये देखेंगे हम। लेकिन अब कप्तान आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए, माजिद मकानदार। और क्या स्वागत किया है रोहित पाटिल ने, एक गगनचुंबी छक्का जड़ाकर उस पूरी राजकुमार डगआउट के पीछे जाकर गेंद गिरी है। आगे निकल कर गए, फुटवर्क का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर रोहित पाटिल ने दमदार तरीके से स्वागत किया है माजिद मकानदार का। रन संख्या बनी है 90 4 विकेट के नुकसान पर। आने दिया गेंद को बल्ले पर, उसके बाद कलाइयों को मोड़कर उस गेंद को खेला है फाइन लेग के इलाके में। स्क्वायर लेग से चेतन पंगेरे ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन रोहित पाटिल ने दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बनी है 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 91 for 4। माजिद मकानदार 2 ही गेंदें अब तक डाल चुके हैं, 7 रन दिए हैं। शुभम गौंडाडकर उनके सामने। ओह, इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला है। राहुल वाजंत्री हैं लॉन्ग ऑन पर, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनता हुआ। टाइमिंग अच्छी नहीं बनी जरूर, लेकिन फिर भी इस गेंद को लॉन्ग ऑन के इलाके में 1 रन बनता हुआ। रन संख्या बनी है 92 अब 56 की जरूरत 63 गेंदों में। अच्छी गेंद, थोड़ी सी रुक कर आई ये गेंद। टप्पा पड़ने के बाद गेंद जितनी तेज आनी चाहिए वैसे आई नहीं, थोड़ी सी रुक कर गेंद आई, लेकिन रोहित पाटिल ने उस गेंद को सफाई के साथ खेला। कोई रन नहीं। एक और बड़ा हिट। क्या कैच लेंगे राहुल? जी नहीं, कैच को तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन छक्का बनता हुआ यह मौका जरूर था राहुल के लिए कि ये वो कैच ले सकते थे, लेकिन जज नहीं कर पाए ठीक तरीके से उस बाउंड्री रोप पर। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal.
face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. Coming back, it's Taik Saram. Thank you, Pramod Jappe, for giving me an opportunity to this evening and this innings to talk about this beautiful game of cricket. Because we know that you're a wonderful commentator and you comment beautifully. You have different words in your dictionary, beautiful words at times. How beautifully you lower your voice and raise your voice. You also watchfully played with software, wanting a single there. In the end, easy single for the taking before it's been fielded by Anand Kumar. Well, as I was telling you, Pramod Jappe, you make it so exciting to listen to your beautiful commentary that it is very nice to hear about you, such beautiful words that you use. Thank you, anyway. That thank you is for giving me an opportunity as well. Thank you. Coming back, a beautiful shot of the back foot and just driving it all along the carpet towards long off. With that, the score cuts it long to 103 for the loss of 4 wickets. Well, dead ball signal there. Maybe the batsman not ready, or maybe he's missing the ball or missing completely. Oh well, it is Tahir Saraf who beautifully is bowling at the moment. And what a catch did he take of the previous over. Again, just pitching it going to the pitch of the ball and taking it on the full, taking it into a full toss, converting it and then driving it all along the carpet towards long on there.
for another single. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 104. Played with soft hands there again to shot. Third man wanting a single, but before the fields. Good running by these two batsmen. Another run for the taking with that single. Well, it also completes the over and the scorecard reading. (105) there after the completion of 11 overs. Scorecard reading 105, and they're going at a very healthy and a good run rate. 9.55 runs per over. To tell you that, there's nothing really much left over in this match. If at all Xavier Gallery have to create something, an opportunity, they have to pick up those runs, those wickets quick and fast, try to pressurize. Another 43 more required of 54 deliveries left over before the completion of this innings and match. And Rohit Patil is batting on 19 runs of the 11 deliveries, and Shubham is batting on 10 runs of the 8 deliveries that he has faced. Once again, Majid Makandar coming into the act. Slightly short of length, and Shubham Gandorkar again picking it from middle and off and trying to play a pull shot there. Not timing it properly. The ball almost stopping towards mid-on. The fielder from long on coming in, Rahul Vernek and Rahul Bajantri coming in and fielding. One more for the taking. With that single, the scorecard limps along to 106. Majid to the batsman Rohit Patil. Good ball there, I would say. Flighting the delivery and pitching up to the batsman, asking the batsman to drive it, cut it. Beaten also into the hands of the keeper for a dot ball. Interesting always to see Majid ball those beautiful leg breaks. Slightly short of length again, pitching it, and a quicker one as well. Pulling it all along the carpet towards wideish of long on. Rahul Vijayantri again comes in and fields the batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard ticks along to 106 now. 107, sorry, 107. Wideish of long off, the ball turning and bouncing well lower than anticipated, and the batsman Shubham driving it towards long off. Amay Batkande, the fielder, comes in and fields. One more for the taking. With that single, scorecard limps along to 108. Again cut shot there, this time Tahir Saraf there, the shot third man. Coming in quickly, just had to move around 2 to 3 yards and fields it. Importantly, a dot ball. With that dot ball, it's 11.5 overs in the scorecard reading 108 for the loss of 4 wickets. Again, short of length there, pulled a shot on jam shot towards mid wicket. Fielder comes in and fields on the bounce to the wicket keeper. One for the taking. With that single taken, the scorecard moves along to 109, and it also completes the over. With that single of the last delivery, the scorecard ticks along to 109 for the loss of 4 wickets. Another just 39 more required of 48 deliveries left over before the completion of this innings and match. Shubham Gandorkar is batting on 12 runs of the 10 deliveries, and Rohit Patil is batting on 21 of 15. Majid Makandar has bowled 2 overs, given away 19 runs at an economy of 9.50 runs per over. Tahir Saraf has beautifully bowled, picked up 2 wickets, given away 25 runs of his bowling quota of 3 overs. Once again, it would be Tahir Saraf coming into the act there. Still plenty of batting left in the dugout in the form of Omkar Verneker, Abhishek Desai, Vishal Bedka. Flighted delivery there, straight past the ball towards long off for another single. With that single, the scorecard moves to 110 now. With 4 wickets are down, maybe 1 or 2 quick wickets, and then they can pressurize Sairaj as to win this match. Not much of an effect to do in the points table, but just a win will boost their morale. Oh, good stop again at the bounce, straight to the bowler. A good hard-hitting shot there, a back foot drive towards the bowler himself on the bounce. Tahir Saraf stopping it. Importantly, a dot ball. Well, I was telling you, both the teams looking for that win there. Well, always to finish
high on a win to take some sweets home to celebrate in the evening. Watchfully played off the back foot again. Shubham Gondwarkar there also anticipating and as to telling this is body language that the ball really keeping low. But importantly, a dot ball there. They just have to just niggle around, takes those ones and twos, go to that total, what they're chasing. Tahir Saraf to Shubham. Again, this time driven off the back foot there towards long off for a single. With that single, the scorecard for the ticks along to 111-111 for the loss of 4 wickets. The Nelson's number comes up there. Can the Nelson number do some magic? Maybe we see many a times wicket goes down at Nelson's figure. That gets Rohit to face Tahir Saraf. Played it uppishly and wide-ish off long off there. What a shot that is. Going down and one knee and playing that inside-out shot. Rohit Patil really showing some skills that he has there. With that boundary, the scorecard ticks along to 115. Rohit Patil moves to 26. Shubham Gondwarkar is batting on 23, and to tell you that both these batsmen together have put up a good partnership of 37 runs between them. Rohit and Shubham together have put up 37 runs of 27 deliveries. Suddenly the target of 148 is looking just mere to them. Again, this time to the fielder at the gully region, Majid Makandar, the captain himself. I would say the short point in the catching position. And with that, Tahir Saraf finishes his bowling quota with 4 overs, giving away 31 runs and pick up 2 wickets at an economy of 7.75 runs per over. And I would say in this format, it's a good piece of bowling. 4 overs, 31 runs with 2 wickets. Well, that gets again Majid Makandar on strike. Majid Makandar to ball his bowling quota of 3rd over and innings 14th over to the batsman Shubham Gondwarkar. Slightly short of length, going onto the back foot and cries of catch it, and in the end good catch there by the mid-wicket fielder. Vinit Patil comes in quickly and looking into the sun there. Not exactly looking into, but the sun shining towards him, and the batsman not crossed as well. Maybe that is what the indication coming from the umpire as well. And since the batsman did not cross, it will be the new batsman coming onto the crease. So the 5th wicket goes down in the form of Shubham Gondwarkar, who managed to get 13 runs of the 14 deliveries that he played, with 1 big 6 that he hit. Well played for that small cameo innings of 13 runs of 14 deliveries. So at the fall of Shubham Gondwarkar, it is Manoj Hosmani comes up. Manoj Hosmani comes up with his to take a strike. Well, he's been given a chance today. A lot of bench strength been checked for Sairaj Warriors. Manoj Hosmani was warming up some benches, but today he's got the opportunity to show his skills. And trying to hit a big one down the leg side. We got to wait for the umpire signal. Meanwhile, the ball running towards the boundary. Well stopped within the line by the fine leg fielder. Meanwhile, the batsmen go for 2 runs. And also one more wanting. In the end, they take 3. This is lazy cricket and sloppy cricket there. Sloppy fielding as well. Wide signaled. 3 runs of the taking and 1 in the form of wide. So 4 runs coming anyway. So with those 4 runs, Sairaj will be very happy that 4 more runs are added on to the total. This is not the right kind of bowling and attitude that has been required by Xavier Gallery. Xavier Gallery just put in their shoulders down at the moment. Again played with soft hands again, wanting a single there and easily taken in the end. Rohit Patil just going to the
pitch of the ball, just looking, trying to play forward, then using the pace of the ball, played with soft hands towards the point region. The batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard for that ticks along to 120. Again, a shot of length, trying to cut it there. This time, Tahir Saraf lets it go, trying to field it with his legs. Boundary signal there, thick edge of the bat, and the ball rolling towards third man area. Tahir Saraf should have stopped it. It is all expected to stop, but not today. Well, even the fielders are just laughing around everywhere we see. And Tahir Saraf lets it go to the boundary. It was a tough ask also on the other hand. You can't dive suddenly and then stop the ball. So he tried to stop it with his legs, but in vain for a boundary. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 124. Again, a big one there. This time, cries of catch it. Amay Bhatkande coming it. Oh, good catch there in front of the commentary box. Another wicket goes down, begging. Good catch there by Amay Bhatkande. So the sixth wicket goes down. Let me tell you, we have a match on. 6 down now. And the wicket of Hosmani goes back. Well, Omkar Vernekar walks onto the crease now. Another man always performing with bat and ball. Many a times you have seen him, and this time he's performed with bat and ball. Every time he's gone out there to play for Swairaj Warriors. So the sixth wicket goes down. And let me tell you, we need 24 more runs of 38 balls remaining before the completion of this innings, and we have a match on. If they can somehow, Xavier Gallery can pull up those 4 wickets, it would be of great fun. Again, trying to hit a big one, trying to go down on one knee and just getting the toe of the bat there, trying to paddle sweep him or slog sweep him. And then, importantly, the ball hitting the toe of the bat and rolling on for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 124. To tell you that 13.5 overs have been bowled, and scorecard reading 124. One more delivery before the completion of this over. Majid to Rohit. Going onto the back foot and cutting him beautifully towards sweeper cover region for a single as the batsman crossed over. With that single taken, the scorecard ticks along to 125. It also completes the over of over number 14. Omkar Vernekar yet to open the account and take the scorecard ticking along. Meanwhile, Rohit Patil is batting on 28 of 21 deliveries that he has faced. Well, Majid Makandar has bowled 3 overs, no maidens, given away 29 runs of 2 wickets that he's picked up. Should be interesting to see who would come on to ball now, the 15th over. Another 23 more runs required of 36 deliveries left over before the completion of this innings and match. It's Anand Kumar. Anand Kumar comes into the act now. Well, Anand Kumar comes into the act with his bowling quota's second over and innings 15th. Sorry, it's his bowling quota's third over and innings 15th over to the batsman Rohit Patil. Again played with soft hands there. The ball just hitting onto the pitch area on the crease, and wicket keeper fielding it on the bounce. Lucky enough the ball not hitting the stumps. On another day, so many times we have seen it. After the ball getting the inside edge, heading onto the stumps. Again trying to go step out there. Majid Makandar has placed himself at short point, trying to attack the field there. This time hit beautifully there towards mid-wicket for a huge 6 there. What a shot that he bat of Rohit Patil Jr. And, with that 6, the
The scorecard ticks along to 131. And this Rohit Patil moves to 34 of 24 deliveries with 3 boundaries, 1 boundary and 3 sixes. So good batting there by Rohit Patil, a young lad. Again going on the back foot and again driving him all along the carpet towards long on for a single. With that single taken, Rohit moves to 35 and the scorecard ticks along to 132. That gets Anand Kumar on strike to face Omkar Vernekar. Watchfully played with soft hands towards mid-wicket, wanting to 2 is the call. The fielder comes in from deep square leg and fields 2 for the taking. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 134. And Omkar Vernekar opens his account with those 2 runs and takes the scorecard ticking along to 134 for the loss of 6 wickets. Again trying to hit a big one there, cries of catch it. And he drops it in the end. And we knew that, we were guessing maybe it is going to be a difficult task there, and he did it. He did not prove us wrong. And it is Rahul Vaishantri there. So easy catch in the world. He had all the time. Maybe a cup of tea could have had and then taken the catch. But not today. He's put it down. A lollipop, I would say. Children also don't drop lollipop these days when they're taking it. But Rahul Vaishantri puts down an easy chocolate. Chance goes begging. Maybe if that catch was taken, then that would be of Rahul Vernekar, and 7 wickets would go down. It would become very difficult for Sairaj Warriors. You never know this beautiful game of cricket, just couple of wickets in 1 or 2 wickets in quick succession in 2-3 balls or 4 balls, and then it changes the complexion of the game. Nevertheless, it was a single for the taking there, and with that drop catch it also completes the over and scorecard reading 135 for the loss of 6 wickets after the completion of 15 overs. That gets Majid on to ball again, his last over of his bowling quota. Going down on 1 knee and again trying to sweep it there. 2 for the taking, 2 easy runs. With those 2 more runs, the scorecard ticks along to 137 for the loss of 6 wickets. Well, Omkar Vernekar goes to 5 runs of the 3 deliveries, and Rohit Patil is batting on 35-25. Flighted delivery again, this time stepped out and hits it. Chance of skies. 1 more 6. Good shot there at the bat of Omkar Vernekar, and with that shot, the scorecard moves to 143 now. 143 for the loss of 6 wickets. Well, Majid does not make any mistake there. So the 7th wicket goes down in the form of Omkar Vernekar trying to hit a big one. And to tell you that 7th wicket goes down begging in the form of Omkar Vernekar, who got 11 runs of the 5 deliveries that he faced. And at the fall of Omkar's wicket, it is Vishal Bedka. Vishal Bedka walking onto the crease now, but it is getting interesting. Another just 5 more runs required of 27 deliveries left over before the completion of this innings and match. There is really nothing much left over. Well, Majid Makandar picks up another wicket there, and he gets 3 wickets now.
Oh, good ball, big appeal, and no, says umpire, we're not interested. Maybe the ball, the impact being outside the off stump and also the height. Good decision there by the umpire. Very experienced umpire, Sanjay Kulkarni. Again, Rohit Patil in 2 minds, wanting to go forward, behind, then caught on the crease there. Off his pads towards the square leg. Majid Makandar himself fielding in his follow-through towards square leg. And one more added on to the total. With that total, the scorecard ticks along to 144 for the loss of 7 wickets. That gets Vishal Bedka on strike to face Majid for the first time. Well, Majid has got ball to 3.5 overs, given away 38 runs, picked up 3 wickets. That's an economy of 9.91 per over. Vishal Bedka to face Majid for the first time now. He wants to set all his field in position. Maybe he can try and grab one more wicket just before he completes his bowling quota. Majid Makandar, the captain, shrewd captain again. Flighted delivery there, inside out shot, one bounce over the fence for a boundary at long off. With that boundary, the scorecard ticks along to 148, and that concludes and ends the match. And in the end, Sairaj Warriors win this match with 3 wickets to spare, and it has been a very comprehensive victory as well. Nothing really much was there in this match before it got started and finish off. And to tell you that, well, the match is over. I request both the teams to come for the presentation as well. We have the guests here at the field. So I request that the captain of Sairaj Sports, Abhishek Desai, and Majid Makandar, both the teams, please come quickly for the presentation ceremony. Thank you. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this
out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
Well, boys, we are here for the presentation of the match played between Xavier Gallery Diamonds versus Sairaj. Before I start with, I would like to call the guest. Wasim, if you can please welcome the guest this evening. That is Aman Usulkar, Sujit Chaugle, Naresh Jadhav and Nasir Patan. If you all can come here, it would be of great honor. Thank you. Start with, to tell you the losing captain, if you can just come up, I'll have a word with you. Well, Tahir, this is the end of the road for you. How would you go about this thing? Yeah, definitely it's the end of the road. We played badly in a couple of games. And if we would have won any one of the matches, we would have qualified into the playoffs. Since you're not qualified into the playoffs, you didn't even manage to qualify this time. If you see the first edition of the same tournament previous year, last year, you went up to the finals and you just ended up as the runners because you are the very high-profile team, and this time you didn't qualify. See, there are 8 teams playing in the tournament, and all are here to win. And the 8 teams can't win. Somebody has to win, somebody has to lose. And we take it sportingly that we played a fair game and we lost the game. Well enough, I do understand and I appreciate that you played very fairly and sportingly you are taking it. What would you like to tell about this beautiful tournament that has taken place for the second time and the second edition that has come up, KR Shetty? Yeah, they have conducted this tournament very well. In between, the rain gods came and we can say it has played a spoil sport. And what would you like to tell your team from here on? Where does the team go? Because still many tournaments coming. You will come back again strongly in the next years. And Xavier Gallery from the bottom of the table that used to end, now you started ending up the top of the table. It is a complete turnaround in the last 2 years that we have seen. Yeah, definitely we used to end in the bottom of the group for last 10 years. But from last 2 years, we are managing to climb up. Yeah, last tournament we were runners. Last year we were runners up. Last tournament we won. And in junior groups also we won one tournament. And today we are on the 5th position. So very happy to see my team being in the top 4. Has the dress code and the color combination made something good for you or just a superstitious? No, when we had chosen yellow, that year all the yellow teams had won the tournament. But this year I think yellow is not going well with CSK also and we are also losing it. Well said there. Last one thing before I finish off. How about that catch that you took today? Everyone talking about, and I've been told to ask you about that beautiful catch that you took of your own bowling. If I would have taken such a catch in the first match, I would have taken all the catches of the tournament. Well answered. I'm running out of questions, but whatever and however you ended up, you really enjoyed well, you entertained us. Thank you very much. Wherever you play on from here on, Xavier Gallery is looking completely different, and we always want the diamonds to keep shining. Thank you very much. I would like to congratulate all the teams who have qualified for the playoffs, and I would like to congratulate my team also. They have played well. Everyone had come here to win the matches, but unfortunately we couldn't do it. Thank you very much, and all the best wherever you play. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. That was Tahir Saraf on behalf of the entire Xavier Gallery Diamonds and also in the captain shoes. Well, now the winning captain. If you can just come up, I'll just finish off quickly. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कांग्रेचुलेशंस अभिषेक. थैंक यू सर. और जिस तरह से अभी आपने जीत हासिल की है, नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. जो पिछले 3-4 दिनों में अर्जुन स्पोर्ट्स सुबली टाइगर्स जो नंबर 1 स्पॉट पे थी, अभी आपने आज इस मैच को जीतकर आप नंबर 1 पे गए हैं, तो ये आप मेंटेन करना चाहोगे? क्योंकि इट इज फॉर श्योर कि फर्स्ट क्वालिफायर खेला जाएगा साइराज और अर्जुन स्पोर्ट्स सुबली टाइगर्स के बीच में. हाँ सर, डेफिनेटली. तो फर्स्ट और सेकंड तो मैटर नहीं करता सर, लेकिन टॉप पे तो है, तो क्वालिफायर खेल के फर्स्ट मैच जीत के फाइनल्स में खेलने के लिए ये अच्छा रहेगा सर. और जिस तरह से टीम प्रदर्शन कर रही है, परफॉर्म कर रही है, कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं तो क्वेश्चन शॉर्ट पड़ रहे हैं मेरे लिए. जो भी आप खेल रहे हो, जैसे भी खेल रहे हो, सिर्फ एक हार पूरे टूर्नामेंट में और फिर आप 12 अंक लेकर नंबर 1 स्पॉट पे. कुछ कहना चाहोगे खास अपनी टीम से?
कुछ नहीं सर, जो मैं सोच रहा हूँ टीम के बारे में कि जो एक्सपेक्टेशन है टीम से वो ये कर रहे सर। जो इतना हम रिस्ट्रिक्ट, आज भी मैं बोला था कि 150 140 के अराउंड ही हम करेंगे, तो उतना ही करें तो अच्छा करे सर। वेल सेड, एवरीवन वाचिंग यू क्लोजली, और खास करके आपके ओनर और कोच तो बहुत खुश रहेंगे जिस तरह से आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस हो रही है। प्लेयर आते हैं जाते हैं, बेंच स्ट्रेंथ भी आपने चेक किया, मायने नहीं रखे, आज भी आपने जीत हासिल की। हाँ सर, जो टीम के साथ ही सिर्फ मेरे साथ मेरे ऊपर से ओनर खुश ऐसा नहीं है, सिर्फ जो टीम कर रही है टीम के साथ ही जो कर रहे हैं उसके ऊपर से ओनर और कोच खुश है सर। जी जी, मेरा कहने का वही मतलब था, सिर्फ आपसे नहीं पूरी टीम से ओनर और कोच खुश रहेंगे। एक आखिरी सवाल मुझे पूछा गया था, आज आपने रोहित पाटिल को चांस दिया, एक यंगस्टर को, शायद ये चांस और थोड़े पहले देना चाहिए था रोटेशन के लिए, या कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे आप, क्योंकि आप विनिंग मोमेंटम चल रहा था, तो ज्यादा यंग प्लेयर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ज्यादा चांस मिल सकता था शायद। हाँ सर, डेफिनेटली उसको दिया था चांस, वो 2-3 मैच में था अंदर, पर बैटिंग उसको नहीं आई थी क्योंकि वो मैचेस इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ऊपर के बैट्समैन ने ही खत्म किया सर लास्ट में। वेल सेड, कांग्रेचुलेशंस, आपके पास सारे जवाब बखूबी है, इसी तरह जीतते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वालिफायर दैट यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट हुबली स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट क्वालिफायर। थैंक यू सर। Thank you. That was Abhishek Desai, the captain of Sairaj Warriors. Now we have plenty of awards to be given away. First and foremost for the sixes, and it goes to none other than Rohit Patil for hitting 3 big sixes. I request Sujit Chogle to please come forward and give away the sixes award. Thank you. The next we have for the best catch, this award to be given away by Naresh Jadhav, if you can come. And the best catch goes to Cotton Bold Tahir Saraf. We had a difficult task, plenty of awards to be given away. The next one for the impact player of this match. The commentators panel, the jury and the committee had to decide who to be the impact. And the impact player goes to Narendra Mangore for his performance with bat and ball. And I request Mr. Aman Usulkar to please come forward and give away this impact trophy. Last but not the least, we had to decide who to be the man of the match. It was a tough one for people who performed with bat and ball, and also in the end it was decided for that wonderful performance that he played till the end and also won the match for his side, none other than Rohit Patil. First and foremost, come. First and foremost, congratulations, Rohit, on you being the man of the match. Thank you, sir. And how does it feel for you to take the man of the match? Pretty good. And you, as your captain said, you were playing there in the earlier matches also, but you didn't get an opportunity to play. Today, when you got an opportunity, you really batted well. The ball was coming on nicely, or it is just a national game? Yeah, it was just a national game. National game. So, would you like to take more man of the matches and perform like this in the days to come? Yeah, sure. If I get opportunity, I'll try to take. If you get an opportunity, you will. You got one and you grabbed with both the hands and you performed. We would like to see you playing like this and perform more, enjoy and entertain us. Congrats on this man of the match and all the best for the remaining matches if you are playing. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. And at the hands of the chief guest, Pathan, Nasir Pathan, please do the honors. You get a beautiful trophy and also you get a 1-year subscription free from Metrocast, which is worth 7,500. We really thank Nagesh Chavria and Sumok Chavria, the CEO. And thank you very much. That is all that we have from the presentation party. And for you people, it is good night. Thank you.
Thank you very much, Aman Usulkar, Sujit Chowk.